Hello everyone. Today we shall start with the next sum of process costing. Fine. And in this sum we will learn about abnormal loss account and abnormal gain account. Fine. Achha, let us go through the sum. What does the sum says? A product passes through three processes A, B and C. Achha. So we have to prepare three process account which I have already prepared, as you can see. Fine. It's done. Three processes A, B and C. 1000 units at the rate of rupees 4 per unit were introduced in process A. Achha, so what is my input? My input is 1000 units. Fine. Achha. And what is the cost of the 1000 units? Each unit costs you rupees 4. So the entire 1000 units will cost you rupees 4000. Production overheads are absorbed as a percentage of direct wages. Achha, this is something that we need to calculate. Production overhead are absorbed as a percentage of direct wages. The following information is available from the cost records. Achha, what are the informations available? Okay. The following information is available from the cost records. Achha, here I have made a mistake. It will not be products, it will be processes. This is process A, process B and process C. Okay, fine. Achha, let us see process A first. Other materials 5200, direct wages 4500. Achha, why they are saying over here other materials? Because the main material is introduced over here, 1000 units at the rate of rupees 4. This is the basic material introduced. So they are calling this material as other material. Okay. Achha, three process ka materials and wages ka information is given. Achha, what else is given? Production overhead ka total is given. Per process ka production overhead ka kharcha not given, because we have to find out production. They have told production overhead absorbed as a percentage of direct wages. This we need to find out कि per process में production overhead कितना absorb हो रहा है. Okay, let us see the next part. The actual output and information relating to normal loss of different processes are given below. अच्छा, process A का normal loss हो रहा है 10%, B का 20, C का 25. Very good. हर process का normal loss is given. अच्छा, output units given of every process. Process A में input हुआ था 1000 units. Process A का output is 900 units. So अगर 100 units normal loss हुआ तो fine, 100 units normal loss ही है, because 1000 units का 10% is 100 units, 100 normal loss. अच्छा, process A का output is process B का input. So process B में घुस रहा है कितना units? 900 units. लेकिन process B से निकल रहा है कितना units? 680 units. So the balancing figure must be my normal loss. Achha, if there is any discrepancy after normal loss, then it must be abnormal loss or abnormal gain. अच्छा, process B कितना output दे रहा है? 680. process B का output process C का input. अच्छा, process C शुरू हो रहा है 680 units से, लेकिन process C से निकल रहा है 540 units. So balancing 140 units कुछ गोलमाल है. तो let us see ये सब क्या गोलमाल है. ठीक है. अच्छा, let us start with the process account. ठीक है. अच्छा, process A we are starting with 1000 units. Sir, two materials. How much quantity? 1000 units at the rate of rupees 4, 4000. ठीक है. Then two other materials. Other materials कितना? Other materials है 5200. To labor, to direct wages how much? 4500. To production overhead पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि as a percentage of direct wages. ठीक है. This is DW means direct wages. अच्छा, अब ये निकालना पड़ेगा कि percentage of direct wages कितना है. तो what shall we write over here?
वर्किंग्स, सी द वर्किंग्स वेरी केयरफुली, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज अगर बेसिक गोलमाल है तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा ही परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन निकालने के लिए, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड, वी राइट प्रोडक्शन ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अच्छा, उसका फॉर्मूला क्या होगा? न्यूमरेटर में जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड बाय डायरेक्ट वेजेस, बिकॉज प्रोडक्शन ओवरहेड इज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस इनटू 100। अच्छा, व्हाट इज द टोटल ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड? Total of production overhead is 14,660 and what is the total of direct wages? 14,660. So 14,660 by 14,660 into 100. So मेरा परसेंटेज कितना आ रहा है? 100%, ठीक है। परसेंटेज कमिंग टू 100%। अब दैट मीन्स प्रोडक्शन ओवरहेड इज डायरेक्ट वेजेस का 100%, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्शन ओवरहेड इज डायरेक्ट ओवरहेड का, प्रोडक्शन ओवरहेड इज डायरेक्ट वेजेस का 100%। सो प्रोसेस ए में प्रोडक्शन ओवरहेड कितना आएगा? प्रोडक्शन ओवरहेड इज 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। So my process A का production overhead is 100% of direct wages of process A. So 100% of 4,500. So my production overhead is 4,500 of process A. So here I write 4,500. Okay. Then here I'll write by normal loss. Same thing that we have done earlier. Okay. 10% of 1,000 units. 10% ऑफ इनपुट 100, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल लॉस कितने में सेल हो रहा है? स्क्रैप वैल्यू 2 रुपये। अच्छा, व्हाट डज स्क्रैप वैल्यू मीन्स? स्क्रैप वैल्यू मीन्स रद्दी का भाव, ठीक है। ये मेरा रद्दी है, इसको मैं रद्दी के भाव बेच रही हूँ 200। अब निकालना पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट, ओके। दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ माई process account, this is my workings. I am not moving on to the next page so that you people can understand, ठीक है। अच्छा, I make a total column over here first because process A में और ज़्यादा जगह नहीं चाहिए हम लोग को। अच्छा, 4,500 4,500 9,000 9,000 plus 4,000 13,000, it's coming to 18,200, ठीक है। सो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए पहले मुझे क्या करना है? डेबिट साइड का यूनिट्स का कॉलम का टोटल करना है और अमाउंट के कॉलम का टोटल करना है, ठीक है। तो पहले मैंने डिनोमिनेटर में बिठा दिया अमाउंट का टोटल अमाउंट, न्यूमरेटर में बिठा दिया टोटल यूनिट्स, फिर मैंने माइनस साइन लिख दिया दोनों में। माइनस साइन लिखने के बाद मुझे देखना पड़ेगा नॉर्मल लॉस में का जो यूनिट्स है, फॉर हाउ मच एम आई सेलिंग इट? 200। हाउ मेनी यूनिट्स? 100, माइनस कर दिया, ठीक है। तो कितना आया? 18,000 डिवाइडेड बाय 900, सो इट्स कमिंग टू हाउ मच रुपीज़? इट्स कमिंग टू 20 रुपीज़, ठीक है। तो हियर आई राइट by process B account how many units transferred to process B? 900. Output units 900. So here I write 900. Mind it, this is not my balancing figure. This is not my balancing figure. This will always be given. My balancing figure in process will either be my abnormal loss or abnormal gain. अच्छा, 20 18,000, ठीक है। अब देखो डेबिट क्रेडिट मैच्ड 18,200, rate will never match, so it's better we don't write rate because rate कभी टैली नहीं करेगा। रेट तो हम लोग टोटल नहीं कर रहे हैं ना, तो रेट का
कॉलम टैली होने का कोई मतलब नहीं बनता है। अच्छा, प्रोसेस ए इज़ ओवर, तो विल स्टार्ट विथ प्रोसेस बी। हियर आई राइट टू प्रोसेस ए, क्वांटिटी आई राइट 920, 18,000. Here I write 2 other materials, 2 direct wages, 2 production overhead. अदर मटेरियल्स कितना है? अदर मटेरियल्स है प्रोसेस बी का 4000, डायरेक्ट वेजेस है 7360. फाइन, सो here I write other materials में I write 4000, here I write 7360. ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट वेजेस का प्रोडक्शन ओवरहेड इज डायरेक्ट वेजेस का 100%, ठीक है। तो प्रोडक्शन ओवरहेड भी आएगा 7360. अच्छा, बाय नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस इज हाउ मच? मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा नॉर्मल लॉस कितना था। नॉर्मल लॉस था 20% ऑफ इनपुट, इनपुट इज प्रोसेस ए का आउटपुट इज प्रोसेस बी का इनपुट, ठीक है। तो 900 के ऊपर 20%, फाइन। हियर वी डू 900 के ऊपर 20%, दैट इज माई क्वांटिटी इज 180. रेट स्क्रैप की वैल्यू कितना? 4. तो ये रद्दी को मैं 4 रुपये करके बेच रही हूँ। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, इसका इट विल कम टू 720. अच्छा, अब निकालो बाय प्रोसेस सी। तो इसका आउटपुट कितना आ रहा है? 680. प्रोसेस बी का आउटपुट इज 680. तो प्रोसेस बी का आउटपुट कहाँ जाएगा? प्रोसेस सी में जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ वाई आई राइट ओवर हियर प्रोसेस सी 680. अब एक बार रफ में टैली कर लो कि यूनिट का कॉलम मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इन रफ 680 प्लस 180 इट्स कमिंग टू हाउ मच? 0 8 8 16 6 7 8 860. ये दोनों को मिला के आ रहा है 860 और इधर है 900. दैट मीन्स 40 यूनिट्स कम है इधर. दैट मीन्स माई 40 यूनिट्स इज एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। अगर ये दिस इज़ माई बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अगर इस साइड में ये साइड ज़्यादा आता, इस साइड में मेरा बैलेंसिंग फिगर आता, तो वो होता एबनॉर्मल गेन, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे क्योंकि एबनॉर्मल लॉस इस साइड में आ चुका है। अगर एबनॉर्मल गेन होता तो इस साइड में और ज़्यादा मतलब लिखना पड़ता, तो वी कुडंट हैव क्लोज्ड इट ओवर हियर। तो हम लोग इसको आराम से क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे? इसके नीचे ही निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? डेबिट साइड में क्वांटिटी का टोटल लिखो, लिख दिया। रेट का टोटल नहीं चाहिए, अब अमाउंट का टोटल लिख दो। अच्छा, अमाउंट का टोटल आएगा 36,720. तो हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। डेबिट साइड में अमाउंट का टोटल को लिखेंगे न्यूमरेटर में, डेबिट साइड की यूनिट्स को लिखेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब क्रेडिट साइड्स के यूनिट को माइनस करेंगे डिनोमिनेटर से, क्रेडिट साइड नॉर्मल लॉस के सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे न्यूमरेटर से। क्लियर? पहले दिस माइनस दिस माइनस दिस, ठीक है। ये करने से मुझे जो मिलेगा दैट इज़ माई कॉस्ट पर यूनिट, and that most probably let me calculate, this is coming to rupees 50 per unit. So abnormal loss का भी वैल्यू 50, इसका वैल्यू भी 50, तो ये आएगा 2000. this will come to 0, ठीक, 34,000, ठीक है। आप देखोगे इसके, अब ये यूनिट कॉलम भी टैली हो जाएगा 860 प्लस 40 900 यूनिट्स, ये कॉलम भी टैली हो जाएगा 36,720 यूनिट्स, ठीक है। ये प्रोसेस अकाउंट का यूनिट एंड अमाउंट का, क्वांटिटी एंड अमाउंट का कॉलम बोथ साइड शुड टैली, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं प्रोसेस सी। प्रोसेस बी ने प्रोसेस सी को कितना दिया? 680 यूनिट्स दिया। तो लिखो प्रोसेस बी अकाउंट,
प्रोसेस सी को प्रोसेस बी से मिला 680 यूनिट्स 50 रुपये करके 34,000। इसके अलावा प्रोसेस सी का अपना इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 2050, वेजेस है 2800। ठीक है, तो इधर हम लोग लिखते हैं टू अदर मटेरियल 2050 टू डायरेक्ट वेजेस कितना था 1 सेकेंड आई फॉरगॉट इट वाज 2800 1 सेकेंड this direct wages is 2800। अच्छा, how much is production overhead? प्रोडक्शन ओवरहेड इज डायरेक्ट वेजेस का 100%। ठीक है, 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस दैट विल बी 2800 ओनली। अब हम लोग जाएंगे अब नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना है प्रोसेस सी का? नॉर्मल लॉस है 25%। 25% ऑफ व्हाट? 25% ऑफ इनपुट दैट इज 680 यूनिट्स। ठीक है, 680 यूनिट्स दिख रहा है प्रोसेस बी का आउटपुट। प्रोसेस बी का आउटपुट मीन्स प्रोसेस सी का इनपुट। फाइन, इट इज कमिंग टू 25% इज माई नॉर्मल लॉस। फाइन, सो हियर I write by normal loss 25% of 680 units, 25% 680 units over 170 units। अच्छा, रेट कितना था 5 रुपीज़ करके दिखा, 5 प्रोसेस सी का तो 5, तो दिस विल कम टू 0, 5 7 से 35, 850 रुपीज़। ठीक है, अच्छा अब प्रोसेस सी का आउटपुट कितना है 540। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिख देते हैं, पता नहीं एबनॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल गेन है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिख देते हैं फिनिश गुड्स 580, फिर बाद में यूनिट्स कॉलम में टैली करेंगे। इंट्रोड्यूस हुआ था 680। ठीक है, एंड हियर वी आर गेटिंग 0, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5, 6, 7, 750 units we are getting as output, whereas as input मुझे सिर्फ 680 यूनिट्स मिला था प्रोसेस बी से। दैट मीन्स मेरा इस प्रोसेस में कुछ एबनॉर्मल गेन हो गया, बढ़िया है। तो हम लोग इसको छोटा करके इसका टोटल कर लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ कॉस्ट पर यूनिट निकालने में प्रॉब्लम होगा। ये टोटल आएगा 41,650 विल कम टू 41,650, सॉरी। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट, लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज, अदरवाइज थोड़ा क्लमजी हो जाएगा इस पेज में। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोसेस सी कैसे निकालेंगे? इस ऊपर अमाउंट, नीचे यूनिट्स। ठीक है, अमाउंट मतलब डेबिट साइड का पहले ये लेंगे 41,650 माइनस 850। ठीक है, 41,650 माइनस 850, नीचे यूनिट्स का डिफरेंस। यूनिट्स इधर आ रहा है 680, इधर आ रहा है 170, दिस माइनस दिस, ठीक है, नॉट दिस, नेवर दिस माइनस दिस, तो 680 minus 170, your unit will come to, divide करके it will come to ₹80। ठीक है, so here I write 80, ये आएगा तुम्हारा 0880002, it will come to 43,200। ठीक है, अच्छा इधर हम लोग लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर टू एबनॉर्मल गेन। कितना हो रहा था एबनॉर्मल गेन? दिस वाज कमिंग टू 815, 56, 750 माइनस 680, एक सेकेंड,
Finished goods is how much? Oh, I made a mistake. Sorry. Finished good is 540. Sorry, I made a mistake. Finished good is 540. Fine. So 540 plus 170. 7, 8, 9, 10, 11. 610. 610 minus, no, 610 is 710 minus 688, 9, 10, 11. 30 units. 30 units is my abnormal gain. ठीक है. अच्छा, मैं दिमाग में था 540 but I have written over here 580. I have done all the calculations using 540 लेकिन I had written 580. Sorry for that. So abnormal gain is 30. इसका भी units आएगा 80 करके 2400. So ये will be closed. This both the sides should match. 710 होगा और amount column should also match. I am not doing the total, फिर calculator में total करना पड़ेगा. This you can do it on your own. अब the important thing that will come to abnormal loss account and normal loss. अच्छा, abnormal loss हम लोग का इधर सिर्फ दो प्रोसेसेस में, एक प्रोसेस में हुआ है, प्रोसेस B में. तो here we have written in process B, we have written by abnormal loss. So in abnormal loss we will write to process B. दिस बाई 2 का गेम है. बाई एबनॉर्मल लॉस कौन से अकाउंट में? प्रोसेस बी में. सो एबनॉर्मल लॉस में होगा 2 प्रोसेस बी. ये बाई था, ये 2 हो गया, नाम चेंज हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, ओहो, इधर 3 कॉलम खोलना था, मैंने नहीं खोल के रखा. ठीक है. क्वांटिटी, रेट, अमाउंट. क्वांटिटी, रेट, अमाउंट. अच्छा, कितना एबनॉर्मल लॉस हुआ था बोलो तो? 40 यूनिट्स. कैन यू सी? I had made visible. तो 40 यूनिट्स 50 रुपये करके 2000. ठीक है. ये कहाँ पे जाएगा बोलो तो? एबनॉर्मल लॉस. एबनॉर्मल लॉस कुछ सेल हुआ था क्या? चलो देखते हैं. एबनॉर्मल लॉस was sold. अच्छा, प्रोसेस बी में आई वॉज सेलिंग द स्क्रैप फॉर ₹4. ठीक है. लेकिन सम में अलग से कहीं पे नहीं बोला है कि एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स, ये एबनॉर्मल लॉस का सेलिंग प्राइस है, बोला है वैल्यू ऑफ स्क्रैप. अब देखो, लॉजिक है कि लॉस एबनॉर्मल हो या नॉर्मल हो वो तो स्क्रैप बन जाता है. लॉस है मतलब दैट इज स्क्रैप. तो तुम सभी स्क्रैप को एक ही प्राइस में सेल करोगे. तुम नॉर्मल लॉस की यूनिट्स को जिस प्राइस में सेल किए हो प्रोसेस 4 बी में, तुम एबनॉर्मल लॉस के स्क्रैप को भी तुम उसी प्राइस में सेल करोगे. सो हियर वी राइट बाय कैश. अच्छा, आई एम सेलिंग 40 यूनिट्स फॉर ₹4. आई एम गेनिंग मीन्स आई एम अर्निंग 160. मेरा 2000 का लॉस, 2000 का प्रोडक्ट वेस्ट हो गया, पूरा वेस्ट. उसको मैंने रद्दी के भाव 160 में बेच दिया. तो बाकी क्या हुआ? बाकी हुआ मेरा लॉस. लॉस कहाँ पे जाएगा? अगर फिनेंशियल लॉस होता तो वो जाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. मेरे कॉस्टिंग में लॉस हुआ है तो ये जाएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में. मतलब अगर हम लोग अकाउंट्स करते इस इधर, जो तुम लोग हमेशा कॉस्ट को बोलते रहते हो मैम अकाउंट्स है ना, इस सेम में अकाउंट्स है ना, वो जो अकाउंट्स है, तो दिस इज़ नॉट अकाउंट्स, दिस इज़ कॉस्ट. सो सिंस दिस इज़ कॉस्ट, विल कॉल दिस प्रॉफिट एंड लॉस एज कॉस्टिंग पीएल. ठीक है, हो गया. अब ये टैली वगैरह आप लोग कर लेना. ठीक है, 40 एंड दिस अमाउंट. अब हम लोग चलते हैं नॉर्मल लॉस में. अच्छा, नॉर्मल लॉस, सॉरी एबनॉर्मल गेन में. नॉर्मल लॉस तो इधर हम लोग करेंगे नहीं. नॉर्मल लॉस तो उधर एडजस्टमेंट हो गया. ठीक है. एबनॉर्मल गेन में चलते हैं. एबनॉर्मल गेन में भी 3 कॉलम खोल लेते हैं. क्वांटिटी, रेट, अमाउंट. समझने में इजी होगा, या फिर यू हैव टू ओपन एक्चुअली 3 कॉलम्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट. हाँ. अच्छा, एबनॉर्मल गेन कौन से प्रोसेस में हुआ था? प्रोसेस सी में. ठीक है. हम लोग प्रोसेस सी में लिखे थे क्या? 2 एबनॉर्मल गेन. तो एबनॉर्मल गेन में क्या लिखेंगे? बाई प्रोसेस सी. सिंपल 2 एंड बाई का गेम है, तो बाई प्रोसेस सी. हाउ मेनी यूनिट्स डू यू रिमेंबर? आई रिमेंबर 30 यूनिट्स 80 रुपीज़ करके 2400. ठीक है. अच्छा, एबनॉर्मल गेन के साथ, एबनॉर्मल गेन को तो सेल नहीं कर पाओगे, ये तो तुम्हारा फ़ायदा हुआ.
ठीक है, इसको तो सेल करने का कोई हिसाब ही नहीं है। हम लोग ढूंढेंगे कि किसी प्रोसेस में मेरा नॉर्मल लॉस है कि नहीं। आप बोलोगे मैम हर प्रोसेस में तो थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मल लॉस था, ठीक है, तो देखते हैं प्रोसेस ए से शुरू करते हैं। मेरा प्रोसेस ए में नॉर्मल लॉस था 100 यूनिट्स, लेकिन मेरा एबनॉर्मल गेन हुआ है सिर्फ 30 यूनिट, तो मैं ज़्यादा नॉर्मल लॉस को एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी इधर। ये एबनॉर्मल गेन के साथ मेरा जो ओवरऑल नॉर्मल लॉस हुआ है उसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देती 30 रुपया करके, ठीक है, समझ, 30 रुपये ने 30 यूनिट्स, 30 यूनिट का मेरा एबनॉर्मल गेन हुआ था। आई एम एडजस्टिंग दैट विद माई नॉर्मल लॉस अकाउंट। अगर इधर मेरा 800 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन होता तो मैं सभी नॉर्मल लॉस को इसके साथ एडजस्ट कर पाती, ठीक है, लेकिन मेरा सिर्फ 30 यूनिट हुआ है, अब इसलिए मैंने 30 यूनिट का नॉर्मल लॉस को एडजस्ट किया। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम मैं कैसे लूँगी, कौन सी प्रोसेस का 30 यूनिट है। देखो अल्टीमेटली प्रोडक्ट ख़त्म होने के बाद सब कुछ एक साथ ही कंबाइंड हो जाता है, ठीक है, तो वैसा कोई बात नहीं है कि कौन से प्रोसेस का है। लेकिन अगर आप लोग इसको स्पेसिफिकली, यू कैन एज्यूम वन थिंग कि ये देखो कि मेरा एबनॉर्मल गेन कौन से प्रोसेस में हुआ था। आप बोलोगे मैम मेरा एबनॉर्मल गेन प्रोसेस सी में हुआ था, वेरी गुड, तो जिस प्रोसेस का एबनॉर्मल गेन उस प्रोसेस के एबनॉर्मल लॉस के साथ एडजस्ट कर दो, क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट एबनॉर्मल गेन तो नहीं है कि मैं दूसरे प्रोसेस के नॉर्मल लॉस के साथ एडजस्ट करूँगी। तो जिसका गेन उसी के लॉस के साथ एडजस्ट करो, दैट इज़ मोर लॉजिकल, फाइन। सो हियर आई हैव रिटन 3। अच्छा, इधर तुमने नॉर्मल लॉस को सेल कितने रुपीज़ में किया, 5 रुपये करके, तो इधर लिख दो। ये तुम एडजस्ट भी करोगी सेल भी करोगी तो लिख दिया 5 रुपये, तो मेरा 150 रुपये का एडजस्ट हो गया। बैलेंसिंग फिगर इज़ माई प्रॉफिट, सो हियर आई राइट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ मेरा इधर 2250 का मेरा प्रॉफिट आया। एबनॉर्मल गेन इज़ क्लियर, पहले एबनॉर्मल गेन लिखो सिंपली, जिस प्रोसेस में हुआ है उस प्रोसेस का नाम दे दो। अब देखो जिस प्रोसेस में एबनॉर्मल गेन है उस प्रोसेस में क्या एबनॉर्मल लॉस भी है, सॉरी नॉर्मल लॉस भी है। देखो नॉर्मल लॉस तो हर प्रोसेस में होगा, तो अगर उस प्रोसेस में नॉर्मल लॉस है, अगर नहीं उस प्रोसेस में नॉर्मल लॉस हो गई तो एबनॉर्मल गेन के साथ, ये एबनॉर्मल गेन के साथ वो नॉर्मल लॉस को एडजस्ट कर दो। बाकी अमाउंट और रेट कॉलम में लिखो वो स्क्रैप वैल्यू, और बाकी जो अमाउंट जाएगा वो चला जाएगा कॉस्टिंग पीएल में। अगर नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के अकाउंट में कोई भी डाउट है, प्लीज़ आफ्टर सीइंग द वीडियो फील फ्री टू गिव मी अ कॉल। ओके, थैंक यू।